الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد آج سے ہم نئے جو اسباق جہاں پہ چھوڑے تھے وہاں سے شروع کریں گے، اور یہ جو ہے جو ہمارا سلیبس ہے اس میں ایڈوانس نحو کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کا ہم پہلا لیسن پڑھ رہے ہیں، ایڈوانس نحو سیکشن کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم موصول کو۔ اسم موصول جیسے آپ کو دیکھا ہوگا قرآن پاک میں الذی، الذین، اللتی، یہ الفاظ آتے ہیں، ماں اور من آتے ہیں، تو ان کو اسم موصول کہتے ہیں، اور یہ کافی عموماً نظر آتے ہیں جب ہم آیات قرآن پاک پڑھتے ہیں آیات میں، تو یہ ان سے ظاہر ہے ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسم موصول اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جب اسم کی ٹائپس پڑھی تھیں، اسم کا جب ہم نے 4 خصوصیات پڑھی تھی نا، اعراب، جنس، عدد، اور پھر اس کی وسعت کے حساب سے اس کی قسمیں، تو جو ایس این جی ٹی ہوتا ہے اسٹیٹس نمبر جینڈر ٹائپ، تو اس میں جو ٹائپ میں اس کی جو قسمیں ہیں وہ دو بڑی قسمیں ہیں، اس میں نکرہ کامن ناؤن اور اس میں معرفہ پراپر ناؤن۔ تو اسم موصول جو ہے وہ ایک قسم ہے اسم معرفہ کی، پراپر ناؤن کی، ٹھیک ہے۔ جیسے پراپر ناؤن تو وہی نا، کسی شخص یا جگہ یا چیز کا خاص نام، یا پھر عربی میں ال لگا دیں تو پھر وہ معرفہ بن جاتا ہے، یا سارے ضمائر اور اسم اشارہ اسم معرفہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جس شخص کو پکارا جا رہا ہو۔ تو یہ مختلف قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، سبق نمبر 8 میں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم موصول اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ موصول میں دیکھیں وصلہ، واو صاد اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم موصول جو ہے اسم مفعول کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وصل کے لفظی معنی ہیں، وصل واو صاد اور لام، وصل کے لفظی معنی ہیں جوڑنا، تعلق رکھنا، ملانا، ٹھیک۔ چنانچہ یہ جو اسم موصول والے الفاظ ہوتے ہیں، اسم موصول جملے کے 2 حصوں کو جوڑنے کا کام دیتے ہیں، جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو کہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اس موصول کی وضاحت کرتا ہے، تو وہ جملے کا وہ حصہ جو اس موصول کے بعد آتا ہے اس کو ہم صلۃ الموصول کہتے ہیں، یا آسانی کے لیے صرف صلہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صلۃ الموصول یا صلہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، یہ چارٹ ہے اسماء الموصولہ کا۔ اس میں دیکھیں یہ دیکھیں، یہ جو پہلا کالم ہے یہ واحد کا ہے، پھر یہ تثنیہ کا ہے، یہ تثنیہ کا کالم ہے، اور پھر الٹے ہاتھ پہ جو کالم ہے وہ جمع کا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی وہ جو، الذی جو ہے مذکر کے لیے آتا ہے، وہ جو، ٹھیک ہے۔ اللذانی 2 مذکر، وہ دو لوگ جو، اسی طریقے سے الذین جب آتا ہے تو وہ جمع کے لیے آتا ہے اور مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ الذین وہ سب جو، اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، وہ جو مطلب وہ جو عورت یا لڑکی، اللتانی 2 خواتین کے لیے، وہ 2 خواتین، وہ 2 خواتین جو۔ اچھا، اللاتی اور اللواتی اور اللائی یہ جو ہیں وہ جمع کے لیے ہیں، وہی جب ہم کہیں گے وہ خواتین جو، وہ ساری عورتیں جو، تو یہ اللاتی، اللواتی اور اللائی۔ اچھا، اسی کے ساتھ یہ ماں اور من بھی ہے، یہ والے جو ہیں یہ تو صرف یہ والے الفاظ جو اوپر ہیں یہ صرف اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی اور الذین، اللاتی، اللواتی، اللائی۔ لیکن ماں اور من جو ہیں وہ اسم موصول کے طور پہ بھی آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے سوال بنانے کے لیے بھی آتے ہیں، ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ماں نفی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اسم موصول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شرط کے لیے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن یہ ماں اور من جو ہیں وہ اسم موصول بن کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ماں وہ جو کوئی چیز، اور من وہ جو کوئی انسان، یا ذوالعقل، من مطلب جو فرشتہ، جن یا انسان میں سے کوئی ایک، من کسی شخص کے لیے، اور ماں وہ جو کوئی بھی چیز۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اسم موصول وہ اسم ہے، دیکھیں اس کا جو سمجھ لیں تعریف دیکھ لیں، کہ اسم موصول وہ اسم ہے جو جملے کے 2 حصوں کو جوڑتا ہوا نظر آتا ہے، البتہ کیونکہ اس کے معنی مبہم یعنی غیر واضح ہوتے ہیں، اس لیے اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے اسے ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر واضح دیکھیں، الذی وہ جو، اب جب جملے میں آیا الذی وہ جو، تو کیا وہ جو، وہ کون ہے، جو اس کے کیا خصوصیات ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے متعلق کیا، یا الذین وہ سب لوگ جو، تو پھر اس کے بعد ایک جملہ آئے گا جو بتائے گا کہ وہ لوگ جو، وہ کیا، ان کے متعلق کیا ہے بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ان کے معنی مبہم یعنی غیر واضح ہوتے ہیں، اس لیے اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے انہیں ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جملہ جو ہوتا ہے جو اس موصول کے بعد آتا ہے اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، صلۃ الموصول جملہ جو ہوتا ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔
अच्छा, जब भी अरबिक में जुमला हो तो इस्म मौसूल हमेशा पहले और सिलतुल मौसूल हमेशा बाद में आता है। ठीक है, इस्म मौसूल हमेशा पहले आता है और सिलतुल मौसूल हमेशा बाद में आता है। इस मौसूल से पहले कोई इसम या जुमला होता है। जब जब कोई जुमला शुरू होगा तो उससे पहले कुछ कोई मुब्तदा होगा या कोई और अल्फाज होंगे। उसके बाद फिर बीच में इस्म मौसूल आता है और इस मौसूल के आने के फौरन बाद उसके साथ उसका सिला आता है। ठीक है, अलबत्ता जुमले में अगर और मजीद कुछ कलाम होता है, कुछ बात होती है, तो उसके बाद भी सिलतुल मौसूल ख़त्म होने के बाद भी मजीद अल्फाज, जुमला या मुरक्कब या इस्म आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सिला होता है जो कि वजाहत के लिए आता है, इस मौसूल के बाद सिला के लग़वी मायने जोड़ जोड़, इनाम या इमदाद के हैं। सिला जो कहते हैं ना, इसको सिला मिला, तो इनाम या इमदाद के हैं या फिर जोड़ने के हैं। यानी वो जुमला जो इस मौसूल का सिला कहलाता है वो इस मौसूल से जुड़कर उसके मानी को वाज़ेह करने में मदद करता है। मसलन मिसाल के तौर पर आप ये देखें, अगर आप ये कहें कि वो खुश खुश हुआ जो, अब अल्लज़ी जैसे वो खुश, अल्लज़ी आएगा ना, एक एक मुज़क्कर की बात हो रही है, वो खुश हुआ जो। अब आपने यहाँ पे अपनी बात को रोक दिया, तो जाहिर है बात का मफहूम समझ में नहीं आएगा। वो खुश हुआ जो, वो क्या था, वो कौन खुश हुआ? ठीक है ना, या वो खुश हुआ तो बात समझ में नहीं आएगी। अलबत्ता अगर आप कहेंगे कि खुश हुआ वो जो इम्तिहान में कामयाब हुआ, ठीक है ना, वो जो इम्तिहान में कामयाब हुआ, तो बात फिर सही से समझ में आ जाएगी। तो वो जो है यहाँ पे वो क्या है, इस मिसाल में उर्दू में वो जो है वो समझ लें इस मौसूल है। जब अरबिक में आएगा तो अल्लज़ी आएगा, और इम्तिहान में कामयाब हुआ, तो नजहा, कामयाब हुआ, तो वो ये जो है ये सिला होगा और ये जुमला फेलिया होगा। ठीक है, सिला होगा जुमला फेलिया के तौर, जुमला फेलिया है जो सिला के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा, एक बात और, सिलतुल मौसूल में एक ज़मीर होती है जो इस मौसूल की तरफ पलटती है। जो इम्तिहान में कामयाब हुआ, अब कामयाब हुआ नजहा जो है उसमें हुआ की ज़मीर होगी ना, नजहा या नसरा, वो खुश हुआ जिसने मदद की, तो जिसने मदद की तो नसरा होगा। तो नसरा में जो हुआ होगा वो पलटेगा अल्लज़ी की तरफ। ठीक है, वो जो की तरफ। तो सिलतुल मौसूल में चाहे वो जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फ़ेलिया हो, उसमें एक ज़मीर होती है। ठीक है, वो जो इस मौसूल की तरफ पलटती है। ये ज़मीर जिन्स और अदद में इस मौसूल के मुताबिक होती है। यानी कि ये अल्लज़ी है, वाहिद मुज़क्कर है, तो यहाँ पे नजहा, नसरा या कोई भी फ़ेल आएगा तो उसमें हुआ की ज़मीर होगी वाहिद मुज़क्कर की। तो जिन्स और अदद में इस मौसूल की तरफ पलटती है। और ज़रूरी नहीं है कि फ़ेल में ही जो ज़मीर है वो पलटे, कोई और ज़मीर भी हो सकती है। अटैच प्रोनाउन जो होते हैं, मुत्तसिल ज़मायर भी पलट सकते हैं। तो ये जो ज़मीर सिलतुल मौसूल में होती है और पलटती है वो इस मौसूल की तरफ, उसे ज़मीर आयद कहते हैं। ज़मीर आयद कहते हैं, या फिर कभी आसानी के लिए सिर्फ आयद कहते भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो इंग्लिश की स्लाइड है उसी चीज़ की। अच्छा, अब अच्छा आपने ये देखा कि ये जो इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल का कॉम्बिनेशन है, ये जब दोनों एक साथ जमा होते हैं तो ये वो कंपाउंड इसम है। मुरक्कब इसम जैसे आपने पढ़ा था ना कि अन के साथ जब अन्ना के साथ जुमला इसमिया मिलता है, अन्नहु तालिबुन, के वो एक तालिब इल्म है, तो के वो एक तालिब इल्म है, तो अन्ना मिलता है और फिर एक जुमला मिलता है, और दोनों मिलके एक मुरक्कब इसम बनाते हैं। एक लफ्ज और एक पूरा जुमला मिलकर एक इसम बनाते हैं, जुमला नहीं बनाते। तो वो जैसे मुरक्कब इसम बनता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह देखें कि ये जो इसम मौसूल और इसका सिला है, इस मौसूल एक लफ्ज है और सिला जो है वो जुमला है, वो दोनों मिलकर एक तरह से मुरक्कब इसम बनाते हैं। तो ये भी एक मुरक्कब इसम की मिसाल है, इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल दोनों मिलके जो बनाते हैं। तो क्या सीखा अभी तक कि ये जो मुरक्कब इसम है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है इसम मौसूल और एक सिला। अच्छा, इस मौसूल में जो मतलब होता है वो कंप्लीट नहीं होता, मुबहम होता है, गैर वाज़ा होता है, उसको अपनी वजाहत के लिए एक जुमला चाहिए होता है, और उसके जो कि हमेशा इस मौसूल के बाद आता है। ठीक है, और इस मौसूल के बाद सिला आता है, और सिला के बाद भी जुमला आगे मजीद जा सकता है, क्योंकि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत सारे उसके मजीद हिस्से होते हैं। तो सिला के बाद भी मजीद जुमला आगे चल सकता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि सिला उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब कोई उसका जो कनेक्शन है वो आगे के अल्फाजों के साथ ना ग्रामर के हिसाब से ना मायनों के हिसाब से हो, तो हमें मालूम हो जाएगा वहाँ पे सिला ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब इस मौसूल और सिलतुल मौसूल जो हैं वो अलग नहीं होते, वो एक साथ ही जो एक, क्योंकि मुरक्कब इसम है ना, तो वो एक साथ होते हैं।
तो ग्राम कवायद के हिसाब से भी और मायनों के हिसाब से भी वो एक साथ चलते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जुमले में जो है जब इस मौसूल आता है तो वो क्या पोजीशन लेता है, किसी भी जुमले में जब इस मौसूल जैसे अल्लजी आ रहा है, अल्लजीना आ रहा है, अल्लती आ रहा है, या माँ और मन आ रहे हैं, तो वो क्या बन के आ रहे हैं? वो डुअर फाइल बन के आ रहे हैं, या मफूल बन के आ रहे हैं, या अगर जुमला इसमिया है तो वो क्या बन के आ रहे हैं, मुब्तदा खबर क्या क्या बन के आ रहे हैं? तो देखिए, अगर तो जुमले के हिसाब से देखें, जुमले के लिहाज से देखें, तो अगर जुमला फेलिया है तो वो अल्लजी फाइल भी बन सकता है, और कभी फाइल भी बन सकता है, और कभी मफूल भी बन के आ सकता है। इसी तरीके से अगर जुमला इसमिया है तो कभी मुब्तदा बन के आ सकता है, और कभी खबर बन के भी आ सकता है। मा, मन, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, ये सारे। ठीक है। अच्छा, और अगर हम मुरक्कब के हिसाब से देखें तो ऐसा हो सकता है कि कोई इस्म हो, और इस मौसूल जो है वो उसकी सिफा या नात बन के आ रहा हो। मौसूल सिफा जैसे आपने पढ़ा ना, तो उसकी नात, उसके मजीद, उसके बारे में मजीद तफसीलात बयान कर रहा होगा, तो फिर वो नात या सिफा बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से इस मौसूल मुदाफ इलैह भी बन सकते हैं। मुदाफ कभी नहीं बनते, इस मौसूल कभी भी मुदाफ नहीं बनते, लेकिन मुदाफ इलैह बन सकते हैं, बन के आ सकते हैं। और इसमो इन्ना भी आ सकते हैं, जैसे उनसे पहले इन्ना, अन्ना का अन्ना भी अन्ना, लईता लकिन्ना ला अल्लाह हो, और उसके बाद कोई इस मौसूल हो, यानी कि अल्लजी, अल्लजी, अल्लजीना। ठीक है। और इस्म मजरूर भी बन सकते हैं, यानी कि उससे पहले अगर हर्फ जर आ जाए, लिल लजीना, जैसे लिल लजीना, लिल लजी, तो लाम, जो पहले लाम है वो हर्फ जर है, ली, और फिर अल्लजी, ली और अल्लजी। ठीक है। तो ये इस तरीके से। अभी जब हम इसकी मिसालें देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखें, ये जो है इस स्लाइड पे हम जुमला फेलिया में किस तरीके से आ रहा है कि फाइल, ये देखिए, काला क्या है, उसने कहा। ठीक है। काला, उसने उसने कहा। अब जब हुआ होता है, हुआ या हिया की वो होती है, तो ये भी हो सकता है कि उसका आउटसाइड डूअर हो। अच्छा, ये बात कि ये अल्लजी, अल्लजीना और माँ, मन, अल्लाती, अल्लावाती, ये सारे जो हैं, ये मबनी अस्मा हैं। इनका हमें वो जो एराब है वो देख के नहीं पता चलता, यानी कि दम्मा या फतहा या कसरा से नहीं पता चलता। अल्लजीना है तो ये इसी सूरत में रफ़ा भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, और जर भी हो सकता है। तो हम जुमले में जब उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पता चलता है कि वो क्या बन के आ रहा है। अब हुआ है, हुआ के बाद कोई इसम अगर रफ़ा की हालत में हो तो वो उसका उसका फाइल बन सकता है। ठीक है ना। हुआ के फॉर्म में अगर फेल हो तो उसके बाद कोई इसम मरफू हालत में हो तो वो बन सकता है। तो कालल लजीना, कहा उन लोगों ने, किन लोगों ने? कालल लजीना, कहा उन लोगों ने। किन लोगों ने? उन लोगों ने कहा जो के यजुन्नूना अन्नहुम मुलाकुल्लाह, जो के यानी कि पूरा यकीन रखते थे अल्लाह ताला से अपनी मुलाकात का। ठीक है। अपनी मुलाकात का, यजुन्नूना, जिनको पूरा यकीन था। जन्ना या जन्नू जब अन्ना और इन्ना के साथ आता है तो वो फिर गुमान नहीं होता, बल्कि वो यकीन होता है। ठीक है। जन्ना या जन्नू जब अन्ना और इन्ना के साथ आए तो फिर वो यकीन वाली कैफियत होती है। तो वो कहा उन लोगों ने जो कि यकीन रखते थे कि वो अल्लाह ताला से, अन्नहुम, के वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाला, मुलाकात का, अल्लाह ताला से मुलाकात का यकीन रखते थे। ठीक है। तो अब ये काला जो है वो फेल है, उसके बाद ये अल्लजीना जो है ये एक मरफू इस्म के तौर पर आ रहा है, इसके साथ फाइल बनकर, और इसको हम कहेंगे फी महल्ली रफिन, क्योंकि मबनी इस्म के जो एराब होते हैं वो फी महल्ली होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, दूसरी मिसाल है, या लमूना, वो जानते थे। क्या जानते थे? माँ, या वो जानते थे। अब क्या जानते थे? माँ, माँ अब कोई चीज़ है ना जो वो जानते थे, कोई चीज़ है, कोई बात है जो वो जानते थे। या लमूना, माँ, माँ मफूल भी, वो जानते थे कि तफ अलूना, के वो जो कुछ वो करते, जो कुछ तुम करते हो। ठीक है। वो जानते थे, नहीं जानते हैं। या लमूना, वो जानते हैं, वो जानते हैं जो कुछ के तुम करते हो। ठीक है। या लमूना, वो जानते हैं जो कुछ के तुम करते हो। अब ये जो कुछ है, माँ जो है, जो कुछ, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। तो वो जानते हैं, क्या जानते हैं? जो कुछ, जो कुछ, ये मफूल भी है। ठीक है। ये जो माँ है ये मफूल भी है। माँ जो है वो मफूल भी आ रहा है। और अच्छा, एक बात और, ये मफूल भी आ रहा है तो ये फी महली नस्ब है। अब ये जो जुमला आ रहा है इसके बाद तफ अलूना, ये जुमला फेलिया सिला है। ठीक है। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो। तो ये जो जुमला आ रहा है ये सिला आ रहा है, और सिला के लिए कहते हैं कि सिला का कोई एराब नहीं है। ठीक है। सिला का हम कोई एराब नहीं कहते। ठीक है। ये जुमला फेलिया सिला है, जुमला फेलिया सिला है, और ला महल्ला मिनल एराब, तो ये इसका कोई एराब नहीं होता, सिला का।
اسم موصول کا اعراب ہوتا ہے اور وہ اس کے حساب سے ہوتا ہے جو پوزیشن وہ لے رہا ہے جملے میں. یہاں پہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے یعلمون کی، تو اس وجہ سے یہ فی محلی نصب ہے. اسی طریقے سے قالا جو ہے فعل ماضی، فعل ماضی، اور الذین جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، فاعل ہے، اور کیونکہ فاعل ہے تو یہ رفع ہوگا، لیکن ہم کیا کہیں گے فی محلی رفن. اور اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو جملہ آ رہا ہے پورا، یظنون انہم ملاق اللہ، یہ صلہ ہے. اور یہ کون سا صلہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یظنون فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ فعلیہ صلہ ہے اور اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، اس صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ فعلیہ صلہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اب جو مثالیں ہیں وہ جملہ اسمیہ سے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں آپ کو پتہ ہے مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، متعلق بالخبر ہوتا ہے. تو دیکھیے مبتدا بن کے آ رہا ہے وما وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے جو کچھ چھپا ہے ان کے دلوں میں، صدور جو کچھ چھپا ہے ان کے دلوں میں وہ زیادہ بڑا ہے، از گریٹر، وہ زیادہ بڑا ہے. اکبر اسم تبدیل ہے نا افعلو کے وزن پہ. اچھا وما، ما جو ہے یہاں پہ یہ مبتدا بن کے آ رہا ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہے. تخفی، تخفی کیا ہے؟ یہ تخفی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے. وما تخفی صدورہم، تخفی ہیا کی ضمیر کے ساتھ ہے نا، تو صدورہم جو ہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے یا ان کے دلوں نے جو کچھ چھپایا ہوا ہے وہ بڑا ہے. تو ماں جو ہے وہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، ماں یہاں پہ مبتدا ہے، اور پھر ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ فی محلی رفن ہے. اور یہ جو تخفی صدورہم ہے، جو ان کے دلوں نے چھپایا ہوا ہے یا ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے، تو یہ صلہ ہے. کون سا صلہ ہے؟ جملہ فعلیہ صلہ ہے. جملہ فعلیہ صلہ ہے، اور صلہ کے لیے ہم کوئی اعراب نہیں لکھیں گے کیونکہ صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اب یہ صلہ یہاں پہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے کہ اب تک تو یہ تھا نا کہ جو کچھ ان کے دلوں نے چھپایا ہوا ہے اس کے بارے میں اب خبر کیا آ رہی ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہے، وہ زیادہ سنگین ہے. ٹھیک ہے، اکبر. اچھا، اس کے بعد جو اگلی مثال ہے اس میں دیکھیں، ہوا آپ کو پتا ہے جب ضمیر منفصل انڈیپینڈنٹ پروناؤن آتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوا جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ مبتدا ہو گیا. اور ضمیر منفصل ہے تو یہ ضمائر فی محلی ہوتے ہیں، فی محلی رفن، کیونکہ ٹھیک ہے ضمائر کا فی محلی رفن. وہ اب وہ آ گیا مبتدا، الذی جو، هو الذی وہی ہے وہ جو. اچھا یہ جو اب یہ خبر ہے، وہ ہے وہ ہے یا وہ ہے جو، الذی جو ہے نا اب خبر بن کے آ رہی ہے. اور کیونکہ خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو اس کو بھی رفع فی محلی رفن کہیں گے، کیونکہ یہ اسم موصول ہے. ابھی الذی جو ہے وہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے نا. اسم موصول کا وہ اعراب ہوتا ہے. اس کے بعد یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ اس کا صلہ ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ وہی ہے وہ جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تمہیں شیپ دیتا ہے، تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، تمہیں بناتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے. کیفا یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے یہ یصورکم یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ فعلیہ صلہ ہے. اب صلہ کے کا ہمیں اعراب لکھنے یا تو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ صلہ ہے. ٹھیک ہے. کس کا صلہ ہے؟ الذی کا صلہ ہے. اچھا الذی میں دیکھیں، الذی میں جو ہے ہوا کی ضمیر ہے نا. ٹھیک ہے. الذی ہوا کی ضمیر ہے. یصورکم میں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ جو یصورکم میں ہوا ہے وہ عائد ہے، ضمیر عائد ہے، وہ پلٹ کر جا رہی ہے الذی کی طرف. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وما تخفی میں ماں جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، اس کی جنس تو نہیں ہوتا ماں کا، اور وہ واحد ہے. تخفی میں ہیا ہے تو وہ پلٹ کے جا رہی ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے بھی دیکھ لیجیے آیت کو نا. اس میں قال الذین، الذین جو ہے وہ کیا ہے؟ اس نمبر اور جینڈر کیا ہے؟ میسکولن اور پلورل ہے. ٹھیک ہے نا. M3 ہے یہ. اب دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی M3 ہے ضمیر. یظنون میں یا بگننگ اونا اینڈنگ، تو یہ وہ مذکر اور
जमा है ना, मुज़क्कर जमा का सीगा है ये। तो इसमें ये वाउल जमा जो है ये जा रही है इसकी तरफ। ये आयद कहाँ है, ये है फ़िल मुदारे, जो जमा मुज़क्कर का सीगा है, ये वाव जो है ये जा रही है, ये ज़मीर आयद है और वो पलट रही है अल्लज़ीना की तरफ। अच्छा, इसमें माँ जो कुछ के वो तुम करते हो, तफ़अलूना। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं। फिर आप जो मुरक्कबात के हवाले से कि कभी ये सिफा बनकर आ सकती है, तो सुन्नतल्लाहिल्लती, अल्लाह ताला के का जो तरीका है, सुन्नतल्लाहि अल्लाह ताला का तरीका। अब यहाँ पे ये बात मुदाफ इलैह खत्म मुकम्मल हो गया ना, अल्लाह ताला का तरीका, जो तरीका है, सुन्नत है अल्लाह ताला की, अल्लती, वो जो, कद खलत मिन कबलू, जो पहले गुजर चुकी है, जो पहले हो चुकी है। ठीक है, सुन्नत अल्लाही, वो अल्लती, वो जो पहले, वो वो सुन्नत, वो तरीका जो पहले गुजर चुका है, कद खलत मिन कबलू। तो ये अल्लती जो है ये इसम मौसूल हुआ ना। ठीक है, अब हम इसम मौसूल हुआ, लेकिन ये क्या बन के आ रहा है, सुन्नत अल्लाही, अल्लाह ताला का तरीका या सुन्नत, अल्लती, उसी अल्लाह ताला की तरीके को ही मजीद की ही मजीद वजाहत हो रही है। यानी कि सुन्नत अल्लाही जो है वो मौसूफ हो गया, और अल्लती उसके बारे में मजीद उसके मालूमात है, मजीद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अल्लती जो है यहाँ पे ये सिफा बन के आ रही है, और सिफा बन के आ रही है। सुन्नता क्या है, सुन्नता मंसूब है, तो अल्लती भी मंसूब है। ठीक है, अच्छा, और फिर ये सिला है, कद खलत मिन कबलू जो है ये सिला है उसका, अल्लती का। अल्लाह ताला का तरीका जो कि पहले गुजर चुका है, तुम नहीं, वलन तजिद लि सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम नहीं पाओगे अल्लाह ताला की सुन्नत में, अल्लाह ताला के तरीके में कोई तब्दीली। ठीक है, अच्छा जी। अब ये अगला जो है, इसमें देखें, कद हर यकीनन, हर्फ तहकीक है ना, यकीनन समी अल्लाह, अल्लाह ताला ने सुन लिया। समी अल्लाह, ये फेले मादी, फिर अल्लाह इसमें जलाला फ़ाइल, कद समी अल्लाह, सर्टेनली, और यकीनन अल्लाह ताला ने सुन लिया। क्या सुन लिया, कौला, कौला, कहा, बात किसकी, कौल लती, बात एक औरत की। ठीक है, बात एक औरत की। ठीक है, तो यहाँ पे कौला, ये देखें, ये उसमें अल भी नहीं है, और ये हल्का भी है, लाइट लाइट इसमें है ना कौला, इसमें तनवीन नहीं है। तो ये मुदाफ है, और अल लती मुदाफिल है। ठीक है, तो ये अभी ये क्या बन के आ रहा है, ये मुदाफ इलैह बन के आ रहा है, और मुदाफ इलैह हमेशा क्या होता है, मुदाफ इलैह हमेशा जर होता है। तो ये फी महल्ली जर होगा, ये अल लती। यहाँ पे सिफा जब बन के आ रहा था, और वो सुन्नता की बन के आ रही थी सिफा, तो सिफा और ये फी महल्ली नस्ब था। ठीक है, यहाँ पे अल्लती जो आ रहा है वो मुदाफिल बन के आ रहा है कौला की, और ये फी महल्ली जर है, क्योंकि मुदाफिल हमेशा जर होता है। फिर अल्लती के साथ सिला क्या है, वो किसकी बात सुनी, बात सुनी, जो के तुजा दिलू का, जो के आपसे अ, झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा, अपने अपने शौहर के बारे में। ठीक है ना, तुजा दिलू का, जो कि आपसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी, बातचीत कर रही थी अपने शौहर के बारे में। ठीक है, तो ये तुजा दिलू का जो है ये सिला है, तुजा दिलू का, और ये भी जुमला फेलिया सिला है अल्लती का। ठीक है, अच्छा, अब एक और मिसाल, इन्ना के साथ भी आ सकता है, इसमो इन्ना बनकर। ठीक है, तो इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। ठीक है, इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मुब्तदा बन गया, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया। इसमें देखें, इन्ना हर्फ नस्ब हो गया, इन्ना जो है वो हर्फ ऑफ नस्ब हो गया, और अल्लजीना उसका इस्मु इन्ना, इस्मु इन्ना बनेगा तो ये क्या होगा, इस्मु इन्ना बनेगा तो ये क्या होगा, फी महल्ली नस्ब होगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इन्ना और इस्मु इन्ना मिलके मुब्तदा बना देंगे, ये मुब्तदा बना देंगे। ठीक है, लेकिन कफरू सिला भी इस मौसूल के साथ ही जाएगा, वो अलग नहीं होता। ठीक है, अलग नहीं होता, तो सिला भी, ये इसका जो कफरू जो है जुमला फेलिया सिला है, वो भी उसी के साथ जाएगा, और ये पूरा का पूरा मुब्तदा बनेगा। ठीक है, इन्ना और अल्लजीना और कफरू, तीनों, ये तीनों मिलकर मुब्तदा। ठीक है, इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन खबर है उसकी। ठीक है, सवाउन जो है वो उसकी खबर है, बराबर है, बराबर है, उनके अलैहिम, उनके लिए, ये जो ये मुतालिक बिल खबर, सवाउन खबर है, और मुतालिक बिल खबर
आंजर तुम अम लम तुंजिरहुम, कि तुम उनको डराओ या ना डराओ, उनके लिए बराबर है। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ला युमिनून अलग जुमला है, आयत एक ही है लेकिन जुमला अलग है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हरफ के साथ इसम मजरूर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था ना इसका, हाँ, इन्ना जो है हर्फ ऑफ नस्ब है, और अल्लज़ीना जो है वो उसका इस्मो इन्ना, तो वो फी महली नस्ब होगा। यहाँ पे जब ये हर्फ जर के बाद आएगा तो हर्फ जर के बाद हमेशा इस्म मजरूर हमेशा जर की हालत में होता है। तो अल्लज़ीना जो है ये इस्म मजरूर है, इस्म मजरूर है, और ये फी महली जर होगा। और वो लोग, और उन लोगों पर खिलाना है, एक शख्स का खिलाना है, फिदिया, फिदियतुन तआमुल मिस्कीन, तआमु मिस्कीन, और उन लोगों पर अ, खिलाना है, युतीकूनहु, उसका खिलाना है, एक, ये उसका खिलाना है, और उन लोगों पर उसका खिलाना है। क्या खिलाना है? फिदियतुन तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का, एक गरीब आदमी को खिलाने का, मिस्कीन आदमी को खिलाने का फिदिया है। ठीक है, तो ये हो गया। ये जार मजरूर की मिसाल देख ली आपने। ये तो हमने अब तक क्या देखा मेरे ख्याल से यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लेसन। हमने क्या देखा कि पहले हमने इस मौसूल और सिला देखा, उसके बाद जो है हमने देखा कि ये आयात में अरबी के जुमलों में किस तरीके से आ सकता है। जुमलों के लेवल पे अगर हम देखें तो ये जुमला इस्मिया में फ़ाइल बन के आ सकता है, मफ़ूल बन के आ सकते हैं, सारे, अल्लज़ी भी आ सकता है, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लाती, अल्लावाती, और माँ और मन, ये सारे जो हैं वो कभी फ़ाइल कभी मफ़ूल बन के आ सकते हैं। और इसी तरीके से जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर भी बन के आ सकते हैं। और फ्रैगमेंट लेवल पे अगर मुरक्कब के सतह पर देखें, मुरक्कब की सतह पे देखें तो सिफा बन के आ सकते हैं, मुदाफ इलैह बन के आ सकते हैं, मुदाफ कभी नहीं बनते। ठीक है, मुदाफ कभी नहीं बनते, और इसमें इन्ना भी बन के आ सकते हैं, और इसमें मजरूर। ये हमने इसकी मिसालें देख ली। और अब ये जो है ये हम लाइव सेशन में इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक में जाएंगे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसमें मौसूल हैं, और फिर उनको देखेंगे कि वो जो आयात हैं उसमें वो क्या बन के आ रहे हैं, जो इस मौसूल आ रहे हैं वो फ़ाइल बन रहे हैं, मफ़ूल बन रहे हैं, या मुब्तदा ख़बर या सिफ़ा के तौर पे आ रहे हैं, या मुदाफ़ इलैह के तौर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सबक ख़त्म होता है। दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।